Assalamu alaikum. My name is Fazal Wahab. You are watching my YouTube channel, and if you are new here, so please subscribe my channel and press the bell icon for latest video updates. We are doing exercise of chapter number 2, I think. Yes, it is chapter number 2, measuring. Measurement. Okay, so this is chapter number 2 and we are doing exercise of this one. So review question, it's page on page number 50, and you already know which book we are using. This is international book, these are international lower secondary science. The book name is International Lower Secondary Science 1, and we are doing exercise of chapter number 2 on page number 50. Okay, so write down the physical quantities and their SI units. Complete the following. Okay, I will. So the question number, write down 5 physical quantities and their SI units. So 5 physical quantities that you can mention here. One physical quantity is length, and their SI unit is meter. And symbol for meter is m. Okay, so this is the physical quantity, and this is length. This is the SI unit for the length, and this one is meter. Is there any problem in understanding English? Okay, so second physical quantity is mass. The definition of length is the distance between 2 points. You understand this one? Distance, but we don't need to mention the definition, but if you want it, so the definition of length is the distance between 2 points, and the SI unit for length is meter, and m is the symbol for meter. Okay, second one is the mass. The second physical quantity, the basic physical quantity is mass, and the definition of mass is the quantity of matter inside a body is called mass, and kilogram is used is SI unit for mass, and kg symbol used for this kilogram. Okay, the third one is time. Can you define time? The interval between two events. कोई भी दो इवेंट्स के दरमियान जो वक्फा होता है ना, असर और मगरिब के दरमियान वक्फा टाइम कहलाता है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि हमारे क्लास कितना टाइम हो गया, भाई 5 मिनट हो गए। क्या मतलब है कि जब हमने स्टार्ट किया तब वो एक इवेंट था, और अब जब हम देख रहे हैं तो ये एक इवेंट है। हर एक लम्हा एक इवेंट होता है। ओके, वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस वन। सो बस द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स, एंड द यूनिट SI यूनिट फॉर टाइम इज सेकेंड. S is used as symbol for second. Okay, number third is what? Temperature. Can you define temperature? The measurement of hotness, or the measurement of degree of hotness or coolness is called temperature. कोई बॉडी कितना गर्म है, कितना ठंडा है, इसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं. एंड SI यूनिट फॉर टेम्परेचर इज केल्विन. K is used as symbol for Kelvin. Okay, and the last one which we will mention is what? Current. Current, बिजली का जो करंट होता है. You understand that one? ठीक है. So current, and ampere is unit. SI unit for current is ampere, and A is used as symbol for current. So these are the main 5 basic physical quantities. These are their SI units, and these are the symbol used for these SI units. Okay, so question number 1 has been over. Now question number 2, complete the following sentence. The following. अब उसमें ये देखें बेटा कि part 1 is 1 kg, 1 kilometer. 1 kilometer. How many meters are there? Kilo means 1000. Kilo means 1000. So how many meters are there? 1000 meters are there. अच्छा, जब हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक आसान मेथड में बताता हूँ.
because this is very difficult to directly convert 1 kilometer into centimeter. This is very simple. How many meters are there in 1 kilometer? 1000. How many? Now look at this one. This is 1000. ये तो 1000 तो मीटर हो गए ना. अब उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो 1 मीटर के अंदर सेंटीमीटर कितना होता है? 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर. तो ये देखिए 2 जीरोस और लगाए. देखिए किलोमीटर को पहले मीटर में, ये 1000. अब मीटर के लिए कितना आएंगे? 2 जीरोस और आ जाएंगे. 100 ना, तो 2 जीरोस और लगाएंगे. ये आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. ये जहन में रख लें कि डायरेक्ट अगर मैं जैसे नेक्स्ट भी कोई मिलीमीटर, देखिए अगर मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 1 सेंटीमीटर के अंदर मिलीमीटर कितना होते हैं? 10. कितने होते हैं? 10. तो इसके साथ एक और जीरो लगा दें. ये देखें 5 जीरोस पहले से हैं. 1 2 3 4 5. 5. अब 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितना होते हैं? 10. तो आप एक और जीरोस लगा दें 10 के लिए. आपका ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया. अगर कोई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके आगे बहुत काम आने वाली चीज़, बहुत ज़्यादा. ठीक है, कि आप किलोमीटर को मिलीमीटर में डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो डायरेक्ट अगर आपको नहीं आ रहा, ठीक है, कि 6 जीरोस लगाने, तो आसान मेथड स्टेप बाय स्टेप आप करें. 1 किलोमीटर है, ये तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर मीटर कितने होते हैं? 1000 होते हैं. हो गया, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100. 2 जीरोस और लगा दें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया. अब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दे तो 1 सेंटीमीटर के अंदर मिलीमीटर कितना होते हैं? 10. तो 1 जीरोस और लगा दें. ये आपका मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया इस तरीके से. यू गॉट दिस. ये बहुत काम आने वाली चीज़ है. आगे ये यूनिट्स कन्वर्जन आपको बार बार आएगा कि कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम किलोमीटर इनटू मीटर, फ्रॉम मीटर इनटू किलोमीटर एंड फ्रॉम सेंटीमीटर इनटू किलोमीटर. सो यू विल हैव टू डू दिस प्रैक्टिस. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन. ओके, ठीक है, ये हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. तो इस तरीके से पार्ट 1 हमारे पास हो गया. 1 ग्राम, 1 ग्राम, मिलीग्राम. 1 ग्राम के अंदर मिली भी 1000 होते हैं, किलो भी 1000 होते हैं. किलो में ये होता है कि ये पॉजिटिव, किलो पॉजिटिव में होता है, मिली नेगेटिव में होता है. ठीक है, अब आप ये देखें कि आप बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे होते हैं या छोटे से बड़े में. जैसे हम किलोमीटर से मीटर में, यानी हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो अब आप उसको 1000 और इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएं. जैसे देखिए ये होता है 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में 1, उसके अंदर मीटर कितने होते हैं? 1000. हमने मल्टीप्लाई कर दिया. इस तरह से ये आपके पास 1000 मीटर हो गए. ठीक है, अब जब हम बड़े से पर छोटे से बड़े में आएंगे तो हम डिवाइड करेंगे. अब यहाँ पे तो हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं. 1 ग्राम है, मिलीग्राम छोटा यूनिट है, तो 1 ग्राम के अंदर मिलीग्राम कितना होता है? 1000 मिलीग्राम होता है. ठीक है, मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम हो गए. इस तरह से अब हम किलोग्राम में जा रहे हैं, किलोग्राम में जा रहे हैं. 1 ग्राम के अंदर किलोग्राम कितना होते हैं? अब देखिए ग्राम से हम किलोग्राम में जा रहे हैं, छोटे यूनिट से हम बड़े यूनिट में जा रहे हैं, छोटे यूनिट से बड़े. अब 1 किलोग्राम के अंदर ग्राम कितने होते हैं? किलो 1000 होता है ना यार. तो 1 किलोग्राम के अंदर ग्राम, जैसे 1 किलोमीटर के अंदर मीटर कितने थे? 1000 ना. ठीक है ना. तो इस तरीके से 1 किलोग्राम के अंदर जो है ग्राम भी 1000 होते हैं. ठीक है, अब जब इस तरह से हम ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हैं तो 1 किलोग्राम में ग्राम कितना होता है? 1000. अब हम चूंकि छोटे यूनिट से, देखिए ग्राम छोटा यूनिट है क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं. तो अब ग्राम से हम किलोग्राम में जा रहे हैं तो 1000 की बजाय हम 1/1000 लिख देंगे. देखिए किलोग्राम से अगर ग्राम में लिखेंगे तो देखिए 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. लेकिन जब हम ग्राम लिखेंगे 1 ग्राम इज इक्वल टू,
ये 1000 इधर इधर आके डिवाइड हो जाए तो 1/1000 किलोग्राम। ये समझ रहे हो? जब आप 1 ग्राम से किलोग्राम में लिखेंगे 1000 डिवाइड होगा, बड़े यूनिट के साथ 1000 डिवाइड हो जाता है, छोटे यूनिट के साथ 1000 मल्टीप्लाई हो जाता है। ये देखिए मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई ग्राम है तो 1000 ग्राम यहाँ पे, ठीक है। और बड़े यूनिट्स के साथ जब मैं 1000 लगाऊंगा तो फिर डिवाइड हो जाएगा। यू गॉट दिस वन। तो ये आपका पार्ट सेकंड हो गया। 1 मिलीग्राम, अब देखिए माइक्रोग्राम भी हम छोटे यूनिट में, अगेन हम छोटे यूनिट में जा रहे हैं। 1 मिलीग्राम, देखिए मैं पहले क्वेश्चन उतार दूँ। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू, ओके, माइक्रोग्राम, ओके, इज इक्वल टू किलोग्राम। अभी देखिए इसमें वही पर बड़ा यूनिट आ रहा है। पहले मिलीग्राम माइक्रो में 10 की पावर -6 होता है, मिलीग्राम में 10 की पावर -3 होता है। अब 1 मिलीग्राम बड़ा यूनिट है, माइक्रोग्राम छोटा यूनिट है, तो 1 मिलीग्राम के अंदर 1000 माइक्रोग्राम होता है। ये याद कर लो, ठीक है, 1000 माइक्रोग्राम होता है। और फिर अब हम किलोग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये देखिए किलोग्राम में, पहले इसको ऐसे अंडरस्टैंड करें, हम माइक्रोग्राम तक जा रहे हैं, ठीक है। किलोग्राम से हम कहाँ तक जा रहे हैं? माइक्रोग्राम तक। हम बिल्कुल उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम में कितना होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और 1 ग्राम में कितने होते हैं? ये एम लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 ग्राम में, बल्कि 1 ग्राम में, बल्कि इसको इसके साथ ही लगा दें। और 1 ग्राम में 10 की पावर 6 माइक्रोग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 10 की पावर 6, तो 6 जीरोस मजीद लगा दें। देखिए 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। अब ग्राम से माइक्रोग्राम में डायरेक्ट जा रहे हैं। माइक्रोग्राम के अंदर माइक्रोग्राम कितने होते हैं? 10 की पावर 6, मतलब 10 जीरोस, 6 जीरोस, ये मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6। ये कितने हो गए आपके पास? ये 1 2 3 और 6 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइक्रोग्राम। ये तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू इतना माइक्रोग्राम। अब 1 माइक्रोग्राम ये सारा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास 1 अपॉन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किलोग्राम हो जाएगा। इवन आप उसको यूँ लिख सकते हैं, ये 1 अपॉन 10 की पावर कितने हैं? 9 है ना, 10 की पावर 9 हो जाएगा। समझ रहे हो? 10 की पावर 9 किलोग्राम हो जाएगा। या इसको आप यूँ लिख सकते हैं, ये 9 ऊपर जाके, ये 10 की पावर नीचे +9 है ना, ऊपर जाके -9, 10 की पावर ये -9 हो जाएगा, -9 kg। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -9 किलोग्राम। ये सारा आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसको ये बार बार देखना ये मुश्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको 100% आना चाहिए, क्योंकि आगे क्लास में बहुत कम आने वाली चीज़ है। वरना फिर अगर अभी नहीं सीखा तो बार बार फिर जो है प्रॉब्लम होगा आपके लिए, ठीक है। ओके, अब आ जाइए हम नेक्स्ट पे 100 मिलीमीटर स्क्वायर हम एरियाज को कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसमें फ़र्क होता है थोड़ा सा। ये बात बच्चों को, बेटा ये चीज़ है अभी सीख लो, क्योंकि मैट्रिक में भी बच्चों को नहीं आता। इवन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होता है उसमें, क्योंकि वो पहले से सीखते नहीं हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। पर मैट्रिक में प्रॉब्लम होता है उसको, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में प्रॉब्लम होता है और मार खा जाते हैं उसकी वजह से। सही है। एरिया में लेंथ में फ़र्क है। एरिया में दो आपके पास, जैसे मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर मल्टीप्लाई, एक ग्राम, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि 100 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय मिलीमीटर में, इसको यूँ लिख सकता हूँ। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, देखें अब आपके पास कितना है, पहले मिलीमीटर, एक, अभी सेंटीमीटर, मिलीमीटर बड़ा है, सेंटीमीटर बड़ा है? मिलीमीटर। देखिए फोकस नहीं कर रहे हैं ना, अभी आपने पढ़ लिया ऊपर, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, पार्ट 1 आपने पढ़ा हुआ था। सेंटीमीटर बड़ा है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर बड़ा है, तो हम किस चीज़ में जा रहे हैं? सेंटीमीटर में जा रहे हैं। अब देखें ये 100 अपनी जगह पे, इसको तो हमने चढ़ना नहीं है। अब मिलीमीटर
1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, फोकस करें। हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं? बड़े से छोटे में। मतलब हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं। हाँ, तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं। और 1 सेंटीमीटर के अंदर मिलीमीटर कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 1/10, एक तो हमारे पास 1 मिलीमीटर के लिए आ गया, एक और मिलीमीटर भी है, ये मल्टीप्लाइड बाय एक और मिलीमीटर भी है, 1/10 एक और हो जाएगा, क्योंकि मिलीमीटर स्क्वायर है। अब ये हमने लगा दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको काट दें, ये 0 इसके साथ कट जाएगा, ये 0 इसके साथ कट जाएगा। तो 100 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट जो है, अच्छा अब हम उसको मीटर में देखिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्दर इसको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। अगेन हम किस चीज़ में कन्वर्ट करना है? मीटर स्क्वायर में। मीटर बड़ा है या मिलीमीटर बड़ा है, सेंटीमीटर बड़ा है? मीटर। तो हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, बड़े से छोटे में? छोटे से बड़े में। 1 मीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं? 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 होते हैं। अब डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं। छोटे से बड़े में तो मल्टीप्लाई। मतलब अगर हम बड़े से छोटे से बड़े में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो फोकस नहीं कर रहे हैं ना, ये चीजें सारे अपने पढ़ ली, आपकी वीडियो के अंदर बेइज्जती हो रही है ना बेटा। आप सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, डिवाइड होगा। तो ये देखिए 1 सेंटीमीटर के लिए 1/100 लगा दिया, ये 1 मीटर में कन्वर्ट हुआ। फिर मल्टीप्लाइड बाय एक और सेंटीमीटर है, उसके लिए भी 1/100 लगा दिया। अब ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये 1/1, 2, 3, 4 मीटर स्क्वायर। अगर आप उसको 10 की पावर में लिखना चाहेंगे तो 1/10 की पावर 1, 2, 3, 4, 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये कुछ पता नहीं क्या है। और ये 10 की पावर ऊपर जाके -4 मीटर स्क्वायर। ये सारे सही है। आप ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 ऑप्शन आपके पास है। यू गेटिंग दिस वन? ये स्टेप्स आपके पास वीडियो में आ रही है। वीडियो बार बार देखिए, चीज़ इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी, आपको याद नहीं होगी। ये वीडियो बार बार देखनी है ताकि चीज़ क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, तो हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब फर्दर हमने इसको किस चीज़ में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये देखिए 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर को हमने किस चीज़ में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर स्क्वायर में। अब ये देखिए 10 की पावर -4 तो अपनी जगह पे, या इसको आप इस तरह से लिख दे, चले ये वाला स्टेप लिख दें। इधर देखें, ये जो ऊपर वाला है ये वाला लिख दें, क्योंकि 10 की पावर -4 पर मल्टीप्लाई करना आपको फिर समझ नहीं आएगा और समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। तो अभी फ़िलहाल आपका लेवल इतना है, तो आप उसको यूँ लिख दें 2, 3, 4। ये क्या है? मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू किलोमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखें, ये मीटर स्क्वायर, मीटर के अंदर 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? किलोमीटर में। किलो का मैंने बताया था ना, किलोमीटर। तो किलो मीटर 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000। हम मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं ना, मीटर से किलोमीटर। बड़े से छोटे में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में? छोटे से बड़े में क्या होगा? डिवाइड होगा। तो देखिए 1/1000, ये 1 मीटर को हमने, अच्छा पहले तो ये साथ साथ लगा दे, ये वैल्यू तो वैसे ही आएगा जैसे ये वाला 1/1, 2, 3, 4, ये तो अपनी जगह पे आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर को किलोमीटर में तो 1/1000, ये 1 मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट हुआ। स्क्वायर है तो एक और भी 1/1000। अब ये कन्वर्ट हो गया
किलोमीटर स्क्वायर में। ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर जो कि किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, ये 1/10 की पावर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर वॉल्यूम आता है तो सेम ही है, ये बाकी प्रोसेस सेम है। जैसे अगला क्वेश्चन है 0.5, ये देखिए जो अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है वो 0.5 मीटर क्यूब है। ठीक है, कितना है 0.5 मीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट करना है पहले मिलीमीटर क्यूब में। मेथड सेम ही है, देखिए थोड़ा सा वॉल्यूम में फ़र्क। किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम में, और मीटर क्यूब से मिलीमीटर में। तो मीटर बड़ा है मिलीमीटर बड़ा है, मीटर बड़ा है। मीटर के अंदर मिलीमीटर कितने होते हैं, 1000 होते हैं। अब तो कम आ रहे हो, लेकिन 1000 होते हैं। मैं आपसे फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं पूछूंगा तो मुझे फ़ौरन जवाब देना है। आपने वीडियो इतना देखना है ताकि चीज़ बिल्कुल आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, क्योंकि मैं बार बार तो नहीं पढ़ाऊँगा ना। ठीक है, ये बार बार देखिए ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छे, मैं पूछो फ़ौरन आपको आंसर आए। ये सोचने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मीटर से हम मिलीमीटर में जा रहे हैं, तो हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखें, ये 0.5 अपने जगह पे, 1 मिलीमीटर के लिए आपने 1000 लगा दिया, या 1 मीटर के लिए 1000 मिलीमीटर कितने 3 है, तो एक और 1000 हो जाएगा, एक और 1000 हो जाएगा। कितने, एक ये वाला, एक ये मीटर क्यूब आपके पास आ रहा है, मीटर क्यूब आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई कितने 9 जीरोज हो जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक ज़ीरो से ये डेसिमल इधर आ जाएगा, 5 हो जाएगा, और एक ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल जब इधर मूव करेंगे एक ज़ीरो के लिए तो एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। बाकी ज़ीरो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। तो 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी कितने मैंने लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना। या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 5 10 की पावर कितने ज़ीरोज़ हैं, 8। ये 5 अपनी जगह 5 10 की पावर 8, ये मिलीमीटर क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। इस तरह से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए 5, इसको इस तरह से लिख दे चले, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलीमीटर क्यूब, उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर बड़ा है मिलीमीटर बड़ा है, सेंटीमीटर बड़ा है। 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने हैं, 10 होते हैं। गुड, ये आपको अच्छा। तो हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में। तो आपके पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने पास ये आ गया, ये तो ऐसे ही आएगा। एक 1/10 1 मिलीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में, 1/10 एक और कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/10 एक और कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1/10 की पावर 10 3 हो जाएगा। ये 3 ज़ीरोज़ इधर 3 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, ये किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ, ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हुआ। तो आपकी ईवी सेंटीमीटर क्यूब इधर लगा दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा ये 1 5 और कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 5। या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 5 10 की पावर 5, 50,000 नहीं है, 500,000 बेटा, 10 की पावर 5 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आ जाएगा। ठीक है, एक उसका मेरा ख्याल में नेक्स्ट भी है, मिलीमीटर ml में मिली। अच्छा, अब 1 लीटर में
1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास ये 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो बस जितने सेंटीमीटर क्यूब है उतने ही ml है, ठीक है। तो हमारे पास ये सेंटीमीटर क्यूब कितने हैं, ये वाले देखिए इतने हैं, ये सेंटीमीटर क्यूब इतने हैं। तो जितने सेंटीमीटर क्यूब है इतने ही आपके पास ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, या इस फॉर्म में लिख दे, मर्जी आपकी जिस फॉर्म में लिखना चाहेंगे उसके साथ क्या करें ml लगा दीजिएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो जितने सेंटीमीटर क्यूब है उतने ही आपके पास ml आ जाएंगे। अच्छा, लीटर में कन्वर्ट करना है तो अब 1 ml 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। 1 लीटर में 1000 ml। अब हम ml से किस चीज़ में जा रहे हैं, लीटर में जा रहे हैं। मिलीलीटर से हम लीटर में जा रहे हैं। लीटर बड़ा यूनिट है, हम बड़े यूनिट में जा रहे हैं। तो अब मिली हमेशा के 1000। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 ml कितने लीटर के बराबर होता है, 1/1000 लीटर के बराबर होता है। अब आप ये कन्वर्ट हो गया किसी में, लीटर में। ये 3 zeros और कैंसिल कर दे, उसके साथ आपके पास आ जाएगा 500 लीटर, आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनली। यू गॉट दिस, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ये हमने कर लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 वगैरह ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।